Good morning students, how are you all? I think you are very fine at your home, you are also safe with your parents. Dear student, today is Saturday and on Monday there is your English paper. Today I hope you all have done your first paper very well. So on 16th of August there will be your English paper. We have done already English revision. I hope सभी लोग ने prepare किया होगा. Tomorrow is Sunday, so again you have to prepare well for English. If you want full marks, you should learn spellings and do not do any type of mistakes in the examination. So dear students, today we will do a recap of English grammar. In English grammar, 3 lessons are coming. So in the first lesson, the alphabet, vowels and consonants. In this chapter, we have learnt about consonants and vowels. As I have told you, there are 26 letters in the alphabet. Total letters कितने होते हैं? 26. और 26 में से out of 26, 5 are vowels and 21 are consonant letters. Dear students, after this, we have done the fill in the blanks. So you have to prepare this filling the blanks for exams, okay? So there are blank letters in the English alphabet, that is 26. The big letters are also called uppercase letter and the small letters are also called lowercase letter. There are blank vowels and blank consonant in the English alphabet. English alphabet में कितने consonant और कितने vowels होते हैं? Yes, 5 vowels are there and 21 consonants. The word big has blank vowel, bag has blank vowels and blank consonant. आपको कोई भी एक word दिया जाएगा, उसमें से आपको vowels को अलग करना है और consonant को अलग करना है, and you have to count how many vowels are there and how many consonants are there. After that, we have learned so many different words in this chapter. After this, we have chapter number 2, that is about words. So in this chapter, we made different types of words. So हमें एक big word दिया गया, that is earthquake. और earthquake से हमें काफी different words बनाने थे. So similarly, ये आपको exam में भी आने वाला है. So you have to make at least 10 words. Okay. हमें at least जितने 12 words दिए हुए हैं, हमें at least 12 words earthquake से बनाने हैं. So let's make out and do a revision. First of all, from the earthquake, we have made ear, E-A-R, ear. After that, we have made E-A-R-T-H, earth. ठीक है, ये second word बना. और क्या बन सकता है? One is done for you, that is E-A-T, eat. ये आपके लिए ऑलरेडी बुक में बना हुआ है. Then we should make different types of words. This T-H-E, the, हम the बना सकते हैं. Then what should we make? We should make T-H, then T-H-R-E-E, 3. We should make T-H-R-E-E, 3 बन रहा है. और क्या बना सकते हो? A-R-E-R बना सकते हो. As I have told you, जो A रहता है वो अपने आप में एक word कहलाता है. It means एक, one, single thing के सामने हम लगाते हैं A. और N तो यहाँ पे है नहीं, so we will write here A. After that, what things we should make? H से क्या बन सकता है? H-U-T, हट बन सकता है. H-U-T, हट बन सकता है. और क्या बन सकता है? T-A-K-E, take. T-A-K-E, take बन सकता है. Take means लेना, है ना? ओके. After that, क्या बना सकते हैं हम? T-H-E, the, we have already prepared. Now, T-H-R-E-E, 3, we have prepared. Yes, T-R-E-E, tree. We can make T-R-E-E, tree also. Okay, and R से क्या बन सकता है? R-A-T, rat. R-A-T,
रेड बना सकते हैं, है ना। और क्या बना सकते हैं, क्यू से तो कुछ नहीं बनेगा बिकॉज क्वीन के लिए एन चाहिए एंड क्वेक के लिए सी चाहिए। सो ई से बना सकते हैं हम, ई नो, ए से ART, आर्ट, यस इट इज ऑल्सो मेड। और क्या बना सकते हैं, ART, आर्ट वी कैन मेक, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं ना, सो आर्ट। Okay, so these are the different 12 words which we made from the word earthquake. Earthquake के अंदर जो लेटर्स दिए हैं उन्हीं लेटर्स को हमें चूज करके एक नया वर्ड तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लेटर हमें नहीं लेना है, जैसे इस earthquake में N लेटर नहीं दिया है। So have you utilized N letter? Have you used N letter? No. So आपको इन लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर्स यूज नहीं करना है। Similar way, I have given you homework for scholarship, है ना। स्कॉलरशिप वर्ड दिया था मैंने और आप लोगों ने वर्ड्स बनाए थे। So in this way we have learned to make many words from a single particular word. After that, in chapter number 3, we have learned about alphabetical order. Alphabetical order, as we know that alphabets are already arranged in an order. अल्फाबेट जो है एक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। लाइक हम कभी भी अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ABCDEFG HIJK LMNOP QRST UVW XYZ इस ऑर्डर में ही पढ़ते हैं। कभी आपने अल्फाबेट कैसे सुना, पहले हमने C बोल दिया, फिर P बोल दिया, फिर T बोल दिया, फिर A बोल दिया, फिर K, फिर L, फिर O, फिर N। नो, अल्फाबेट्स आर ऑलरेडी अरेंज इन एन ऑर्डर और उसी ऑर्डर को कहा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो जब भी हम कोई वर्ड्स को लिखते हैं, लाइक आई हैव वर्ड हियर ईयर, अगर ईयर को मुझे अल्फाबेटिकल अरेंज करना है तो सबसे पहले इन तीनों इस वर्ड में से 3 लेटर्स हैं। वी हैव 3 वर्ड्स इन दिस वर्ड, EAR, 3 लेटर्स। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, ए। अल्फाबेट में सबसे पहले आता है A B C D B C तो है नहीं, यहाँ पे D भी नहीं है, E है। सो E आएगा और लास्ट में क्या आएगा, R। So in this way I have arranged the word, the letters in the alphabetical order. So this is the alphabetical order. I hope you all have understood this chapter also. So dear students, yesterday on Monday there will be your examination in which 3 lessons are coming. I hope you all have prepared very well. Okay, so dear students, English के लिए आपको best of luck, even also for the other papers. Objective and subjective 2 types of papers होने वाले हैं आपके। Objective paper में क्या होगा, first of all I will tell you. In the objective paper, you all have signed up in the Saket Public School app. Yes, test साकेत पब्लिक स्कूल ऐप में ही होगी। आपकी जो टेस्ट है वो साकेत पब्लिक स्कूल ऐप के थ्रू ही होगी। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो आज के आज ऐप डाउनलोड करें और उसी में उनको टेस्ट देना है। टेस्ट का टाइमिंग है 9 to 9:30 फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 9:30 to 10:30 फॉर सब्जेक्टिव। इन द ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, 10 क्वेश्चंस, उसमें से हर एक क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शंस हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है इन द मोबाइल ओनली, है ना। आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं लिखना है, मोबाइल में आपको टिक मार्क करना है। MCQs, okay, these are called multiple choice questions, okay. Same way 10 पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हर 4 ऑप्शंस में आपको एक ना एक सिलेक्ट करके और उसे राइट आंसर में कन्वर्ट करना है।
So in this way, if you done all the 10 are correct, so you got 10 marks. आपको वहीं पे आपके scores दिख जाएंगे या फिर मैम आपको डिक्लेयर करेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन, योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड. सो 10 मार्क्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसके बाद आएगा सब्जेक्टिव पेपर जो 9:30 से स्टार्ट होगा अप टू 10:30. ओके, सो 9:30 से जो सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होगा उसमें आपको एक पेपर आएगा. उसी में आएगा, किसमें आएगा? साकेत पब्लिक स्कूल लैब में. और आई होप आप सभी लोगों ने अपने सप्लीमेंट्स जो है वो स्कूल से ले जा लिए हैं. सो आपको जो पेपर आएगा उसमें से आपको क्वेश्चन रीड करना है और उसका आंसर आपको सप्लीमेंट में लिखना है, राइट डाउन करना है. एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर, क्लोज योर सप्लीमेंट एंड गिव इट टू योर मदर और एनी एल्डर पर्सन जो उन्हें सेफ तरीके से संभाल के रख सके. जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होती है ऑन 23rd, सो यू हैव टू सबमिट इट इन द स्कूल. फिर हम उनको चेक करेंगे और उस तरीके से आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स दिए जाएंगे. और पेपर खत्म होने के बाद 10:30 बजे यानी 10:30 को जब आपका पेपर एंड होगा, उसके बाद आपको उसका फोटो खींच के आपको सब्जेक्ट टीचर के पास भेजना है. जो सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे, जो टीचर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको उनकी फोटो भेजना है. ठीक है, ये हो गए 40 मार्क्स, 10 फॉर ऑब्जेक्टिव, 30 फॉर सब्जेक्टिव. उसके बाद होगा आपका ओरल होंगे आपके पूरे एग्जामिनेशन एंड होने के बाद. ठीक है, ओरल का टाइम टेबल आपको फिर से दिया जाएगा. सो ओरल लिए मैम आपको कॉल करेंगे ओरल के लिए. सो यू गॉट 10 मार्क्स. फॉर द ओरल एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न अ पोयम ऑफ इंग्लिश. ओके, इंग्लिश की कोई भी एक पोयम लर्न करनी है, मैम आपसे पोयम पूछने वाले हैं. ओके, आफ्टर दैट 20 मार्क्स फॉर नोटबुक्स एंड बुक सबमिशन, जो आपको टाइम दिया हुआ गया था. जिन लोगों ने बुक्स और नोटबुक्स अच्छे तरीके से सबमिट किए हैं, कंप्लीटेड हैं, उनको 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे. सो इन दिस वे योर रिजल्ट विल मेक. और रिजल्ट बनने के बाद द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उसका नोटिस आपको मिलेगा. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट योर एग्जामिनेशन. So dear students, on Monday there will be your English paper, so best of luck for that. On Monday English के videos नहीं आएंगे क्योंकि उस दिन उसका पेपर है. ठीक है, from Tuesday we will continue our syllabus. Okay, so bye dear students, take care and best of luck for the examination. Do your best always.